No, you haven't. That's all fine if you haven't. I mean, there it says seven C's, right? So seven C's: complete, clear, complete, accurate. So seven C's, yes, somehow like this, that the all the principles of effective communication are starting with C, right? There are seven C's. So we would be discussing each C individually to see that what that word plays role so that we can have effective communication. Okay, so the first one is clear. Clear in terms of goal or message, in terms of purpose. Guys, I can't see a screen on my cell phone. Please confirm me if you can see seven C's of effective communication slide. Because I don't know, I can't see it. Okay, that's good. If you guys can see, that's all. So the first one is clear. This says that your communication can only be effective if your goal or message, this means purpose, is clear. This means that whatever you want to speak, the goal or the communication is clear. In terms of that, you want someone to work for you or you want some work to be done by other person. उसका मतलब है, ये आपका गोल है कि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपका कोई काम करे, राइट? आप अगर किसी को कहना चाह रहे हैं कि यार जो तुमने असाइनमेंट बनाई है मुझे मुझे दो ताकि मैं बनाऊं, अगर आप उसको सही तरह से कन्वे नहीं करेंगे और वो अगर नहीं समझ पाया, कन्वे सही ना करने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, राइट? अगर उस बंदे को समझ में नहीं आया तो उसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुई है। In terms that your goal should be clearly defined that what you're talking about, right? Even though, for example, if you are going for the hospitality, sorry, if you are having a good hospitality, आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा बोलना है, right? Then you have to be very much clear that my goal is to be very good. फिर अंदर से मैं कितना ही शैतान हूँ, बट मेहमानों के सामने मुझे बहुत अच्छा बनना है। For example, if you are fighting with someone, उस वक्त भी your goal should be so much clear that you have to fight. You can't be like so much good. अच्छा तुमने मुझे मारा. You can't be like that. अच्छा तुमने मुझे मारा, right? So whenever we have certain objectives to talk to or certain goals to achieve to, we should be very much clear that this is the message and this message needs to be conveyed, right? And in this manner and this way. I I'm not talking about intonation and everything right now, but even though a single message can change meanings if the stress on the words is different. Right now, my goal or message is to make you understand seven C's of effective communication, right? So I am clearly talking about seven C's. I'm not talking about anything else. Even though if I'm giving you examples, these all examples are there in order to clarify what these seven C's are all about. Right now, I'm not talking about electronic communication. Right now, I'm not talking about research writing. Right now, I'm not talking about anything else. Because my goal or purpose is to just clear what are the seven C's of effective communication. I hope the term clear in seven C's is clear that when we talk about clear, we mean that we should be very much sure about our goal or the purpose of communication. Then we have concise. Concise means that when you are talking to someone or you are having conversation, you should be to the point. You shouldn't beat about the bushes. राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमें कोई बात बता रहा होता है तो हम उसको हमेशा से बोलते हैं कि यार छोड़ काम की बात कर। व्हेन वी से यार छोड़ काम की बात कर, दिस मींस दैट अपनी पॉइंट पर आओ, राइट? व्हाट हैपेंस व्हेन वी मेक आवर कम्युनिकेशन कंसाइज, टाइम सेविंग होता है, राइट? और उसमें क्या होता है कि हम इधर उधर की बातें जब नहीं करते तो अगले का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। और हमारा टाइम बच जाता है, हमारा जो गोल होता है, जो पर्पस होता है जिसके लिए हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट की है, वो हमें जल्दी और आसानी से जो है हासिल हो जाता है। यू शुडंट टॉक
a long or a lot about something which is not important. If you are talking about something, you need to be to the point and you should not talk which is irrelevant. To the point means that you should talk which is relevant. You shouldn't talk about irrelevant things. अब आपसे मैंने पूछा यार खाला की तबीयत का बताओ, हाँ फिर मैं गई थी, फिर पता नहीं भूल गई कि मैंने चाबी कहाँ रखी. So I would be definitely telling you, यार मैं तुमसे खाला का पूछा तो खाला का बताओ, right? You should talk to the point. Whenever we are talking, the first thing is that we should clear that what we are to talk about. And the second thing is we should be concise. We shouldn't have a lot of words and no message. We should have a clear message within few words. I hope these two are clear. If they are not, please ask me the question. If they are clear, please let me know. Meanwhile, I'll be sipping my tea. You just let to need me know if these two were clear or not. Exactly. जैसे हम कहते हैं कि यार घुमा फिरा के बात ना करो, सीधा पॉइंट पे आओ. So we need to be concise और उसका मतलब यही होता है कि प्लीज टॉक टू द पॉइंट और इधर उधर की बातें ना करें. All right. So these are very easy, which we need to understand. And then the third one is concrete. Concrete means clear picture. When we are saying clear picture, it doesn't mean a WhatsApp picture, right? Or it even doesn't mean that a painting, or it even doesn't mean visualization, right? अगर आप सामने जो मैंने लिखा हुआ है वो अगर आप देख रहे हैं तो this is not a clear picture, right? चलें जी. I am asking you something to imagine in mind. ठीक है? आप imagine करेंगे, मैं आपको दो situations बताऊंगी and then you want to tell me कि कौन सी imagination आपकी strong है. I'm just telling you. So there was a guy, situation one, right? I'm telling you situation one. There was a guy who wanted to become a successful person. He studied day and night out in order to have good grades, and he jumped the well. And he jumped the well. This is situation one. And situation two is there was a guy who was so ambitious. He always wanted to do something great in his life. One day, he was passing by a well and he slipped and fell into the well. So, which imagination was stronger and clear, the first one or the second one? Which imagination was clear, the first one or the second one? Second one. चलें जी, एक और एग्जांपल ले रहे हैं. I will ask you to imagine it. I want you to imagine it. Situation one is girl. लड़के ज्यादा खुश ना हो. Situation one is girl. I want you to imagine whatever I'm asking you to. I want you to imagine a girl. Situation one is that you have to imagine a girl. Now, situation two is a cute little girl in pink frock. A cute little girl in pink frock. Now, let me know which imagination is stronger, the first one or the second one?
All those who are saying both, I can understand आपके दुख from girl to little girl. In both the cases, our second imagination got stronger. Our second imagination got stronger because हमारे जहन में जो पिक्चर बन रही थी, right, वो strong थी. When we talk about concrete, that means a clear picture in the mind. Haven't you realized that whenever we used to listen any story into our childhood, वो सारी की सारी हम अपने दिमाग में उसको चलाते थे. अगर हमें कोई बताता था कि सिंड्रेला थी, उसके साथ ये हुआ, तो वो सारी स्टोरी हमने अपने तरह से अपने जहन में जो है बनाई हुई है. वो जो जहन में हमारे पिक्चर बनती है, उसको हम कहते हैं कॉन्क्रिएटनेस. कॉन्क्रिएटनेस का मतलब होता है जो भी बात आप कर रहे हैं उसका जहन में एक क्लियर इमेज, क्लियर थॉट बनी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे मैंने आपको पहली सिचुएशन में कहा कि एक लड़का था, बहुत कामयाब बनना चाहता था, पर वो कुएं में गिर गया. तो आपकी सिचुएशन जो है आपके जहन की, वो क्या है, टूट गई कि एक लड़का था बट वो गिरा कैसे. व्हेन दिस सिचुएशन कम्स इनटू माइंड कि आपकी इमेजिनेशन टूटती है, तो फिर मिसकम्युनिकेशन होती है. कॉन्क्रीटनेस का मकसद यही है कि एक क्लियर पिक्चर जहन में बने फॉर वॉट एवर यू आर सेइंग. फर्स्ट सिचुएशन में तो हम पता नहीं कहाँ क्या सोचे थे, बट एक्शन में क्लियर था. सेकंड स्क्रीन गोन. अच्छा जी, चले मैं स्क्रीन को देखती हूँ. आप स्क्रीन को छोड़ें, आप जो है इस कॉन्सेप्ट पे आए जब तक मैं स्क्रीन को जो है देखती हूँ. तो हमारे पास जो इसका मतलब है, और डियर योर कॉल हैज ड्रॉप. चलें जी. When we talk about concreteness, we talk about a clear picture in our mind, right? I hope the term concreteness is clear to everyone. Please confirm me if the screen is visible now. Right. Most of the times ऐसा होता है कि अगर कोई हमें अपनी बात बता रहा होता है, sorry guys, I'm switching to Urdu so that I can make you these चीज understand with common example. हो सकता है आपको इंग्लिश में वो मजा ना आए, आप ना समझे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई हमें अपनी बात बता रहा है, हम इमेजिन कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कोई ये बता रहा है कि यार मेरे घर में चोर आए थे, तो वो हमें बता रहे कि यार मेरे घर में चोर घुसे, फिर उन्होंने हमसे जो है सोना मांगा. तो आप एकदम से इसको बोलेंगे यार रुको तो सही, ये तो पहले बताओ कि चोर घुसे कैसे, बिकॉज आपकी इमेजिनेशन वहां पर ही टूट गई है कि चोर आए तो सही, पर आए कैसे. आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि चोर घुसे और उनसे मांगा, उस बिटवीन का जो सीन है वो गायब है. राइट. तो हम ये कहते कि यार रुको तो सही, ये बात कैसे हुई, पहले ये तो बता, पहले मैं ये तो अपने जहन में क्लियर करूं. तो वी डू दिस जब हमारी जहन की वो पिक्चर टूटती है. एंड इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि हमारी वो जहन की पिक्चर जो है वो टूटे ना. Round number 01, you got a question, please put it up. Please ask me your question, Meena, and I'll be answering it too. All right. So now I hope that the clear means what we want to actually convey. Concise means we should be to the point. Concrete means that it should make a clear thought into the mind, right? A clear picture. Because whenever we think about something or listen to something, we ultimately, unconsciously make a picture of it into the mind, and that picture into the mind should be clear. Then we have correct. When we say correct, ये सिर्फ इसलिए हम करेक्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज, बट ये हम सबका एक इखलाकी फर्ज बनता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे का मतलब है कि सही तरीके से उसको आगे पहुंचाएं. उसमें कोई भी हम मिस इंफॉर्मेशन ना दें ताकि हमारी कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो. When we talk about the correct, we talk about two terms. Information should be correct. It shouldn't be fake.
right? Most of the times, you know, the circulars are fake, and news is fake, a lot of things are fake, and it affects our life directly or indirectly most of the times. The other thing which we need to mind, that language should be clear, right? It should be correct. If I want to ask somebody what is your name, that should be what is your name. It shouldn't be what name is, right? When if you're asking someone what name is, that person might not understand what you're talking about. Or even though sometimes some language में भी shortcuts लेते हैं, पिला दे ना यार. अब we want to ask someone कि चाय पिला दे, कॉफी पिला दे, पानी पिला दे, what पिला दे ना यार. So most of the times this happens that we even make shortcuts into languages, और ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो अगलों को समझ में नहीं आते हैं. हमारे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हम प्रॉपर यूज नहीं करते हैं. Even though when I'm talking about written or talking about spoken, right? Whatever language is or whatever means we have in order to communicate, we should have a proper use of language, right? Language should be used correctly and the information should be correct. स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन बने का मतलब ये नहीं है कि आप बनाएंगे. आप अगर अपनी लाइफ पे या अपनी डेली चीजों पे नजर डालें तो इमेजिनेशन खुद बनती है, राइट? तो जब आप बात करें तो वो इमेजिनेशन टूटे ना, वो स्ट्रांग हो, ठीक है? वो जो बंदा आपकी बात सुन रहा है वो अपने जहन में क्लियर पिक्चर बनाए, एक क्लियर थॉट बनाए कि आप उसको कहना क्या चाह रहे हो. आई होप 01 is clear now. So I believe fourth one is really easy to understand, that the information and language needs to be correct. ठीक है? कितना दुख होता है कि अगर हम किसी से कोई भी बात पूछें और वो हमें सही नहीं बताए और बाद में हमें पता चलता है कि ये बात इस तरह से नहीं उस तरह से. बाज़ औक़ात कई दफ़ा हमें गलत इन्फॉर्मेशन होती है, हम उस पे अपने डिसीज़न्स ले लेते हैं, लड़ पड़ते हैं, हम अपने उस पे फ़ैसले करके बैठ जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो बात या वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी. तो हमें पछतावा भी होता है, दुःख भी होता है और कई बार तो वो चीज़ हमारे हाथों से जा चुकी होती है. तो जब भी आप खुद कन्वे करें या आप सुने, तो कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो करेक्ट हो, ठीक है? और हमारी लैंग्वेज करेक्ट हो. व्हेन आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज, इट डज़न्ट मीन कि सिर्फ लैंग्वेज की ग्रामर. आपकी अगर रिटन में है तो आपकी स्पेलिंग्स सही हो. अगर आप स्पोकन में बात करें तो आपका लहजा सही हो. इवन आपका इंटोनेशन all the time give a different meaning to the sentence, right? So we should take care of each and every corner of language when we are speaking to one another. Then the fifth one is coherent. That whatever we speak, their ideas should be connected. There should be a logical sequence of those ideas. If I am talking to you right now, you won't be baffling कि मैम आपने दूसरा बाप हमें कोहेरेंट का बताया. मैं जब भी आपके साथ बात कर रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग इन अ लॉजिकल वे कि पहले मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट किया है, फिर मैंने कंसाइज का कंसेप्ट क्लियर किया है, फिर कॉन्क्रीट का, फिर करेक्ट का, फिर कोहेरेंट का. मैं एक ऑर्डर में चलती आ रही हूँ. जब भी आप अगर दोस्त से पूछें यार बताओ तो सही कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो वो आपको यही नहीं कहेगा कि यार मेरी हड्डी टूटी थी, फिर पेट्रोल खत्म हो गया था, फिर मैं गिरा था. डेफिनेटली नॉट. Every spoken or written language needs to be logically connected, and the ideas should be flowing into and ideas should be in a flowing manner. ऐसा नहीं होगा कि पहले आप द एंड बताएंगे, राइट? बीच में आप स्टार्टिंग बताएंगे, फिर एंड में बताएंगे कि किस तरह से हुआ, राइट? इस तरह से नहीं होगा. इवन दो अगर मैं अभी आपके साथ बात करें तो आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट दैट इज बीइंग हैपनिंग इनटू प्रेजेंट, और ठीक है जनरल आइडियाज दे रही. अगर आप किसी को ये कहेंगे यार ये तो बताओ कि कल क्या हुआ, दैट पर्सन कैन नॉट टेल यू कल क्या हुआ इन द फ्यूचर टेंस, राइट? आइडियाज लॉजिकल होने चाहिए तो ग्रामेटिकली भी वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है? ग्रामर भी आपस में कोहेरेंट होनी चाहिए.
Yes, in the fourth one, when we talk about correct, so this means that you need to be truthful. You need to convey correct information. So the fifth one, coherent, means that the ideas should be into a flowing manner, right? It shouldn't be that you are having confusion at the beginning and beginning in between and in between at the end, right? So everything when you are talking to someone that needs to be logically connected. Then we have complete. Whenever you are talking to someone or into communication, your facts and figures should be complete. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि आप जो है पूरी इंफॉर्मेशन ना दें. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई एक आधी आधी अधूरी बात बताता है. यार तुझे बताया आज क्या हुआ उसके साथ. तो हम क्या उसको कहते हैं, यार पूरी बात बता. मतलब हमें कंप्लीट फैक्ट्स दो, हमें कंप्लीट फिगर्स दो. फिगर्स का मतलब है नंबर, फैक्ट का मतलब है कि जो भी सच या हकायक हुए हैं वो हमें कंप्लीट बताने चाहिए. ऐसा ना हो कि हम आधी अधूरी बातें कर लें और उससे जो है लोग गलत कंसेप्शन लेके बैठ जाएं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन be we need to be in a position that we can convey a complete message. We shouldn't convey any message that is halfway. आधे अधूरे मैसेजेस हमें नहीं कन्वे करने होते हैं. हमने पूरे फैक्ट्स और फिगर्स, या तो हम अपना पहले गोल बनाएं कि मुझे पूरी बात नहीं बस इतनी बात बतानी है और वो उतनी ही बात जरूरी है. तो फिर वो हमारे कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर हो गए अकॉर्डिंग टू अवर गोल. बट अगर आपका कोई भी गोल ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक बताने हैं, जनरल बताने हैं, देन योर फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी कंप्लीट. देन वी हैव कॉर्टियस. कॉर्टियस का मतलब है कि आपका जो बिहेवियर है वो रिटन में हो या मोस्टली ये जो सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन है उसका हमारा जो मतलब होता है स्पोकन होता है. कॉर्टियस का मतलब है कि पोलाइट हो और ऑनेस्ट हो, राइट. आप जब भी किसी से बात करें बिल्कुल हर्ष लहजे में बात ना करें. पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कोई अगर बहुत अच्छी बात आपको गुस्से में कहेगा तो आपको कभी भी वो अच्छी नहीं लगेगी. और कभी कभार अगर कोई कड़वी बात आपको प्यार से समझाएगा तो आपको बहुत ही अच्छी लगती है. इवन तो पता है क्या होता है कि इवन हमारा दोस्त कभी अगर गुस्से में हमसे बात करता है तो हम उसको बोलते हैं यार ये तुम बात कैसे कर रहे हो. या अगर हम कहीं शॉपिंग करने चले जाएं, दुकानदार हमसे अगर थोड़ा भी कड़क लहजे में बात करता है तो हम उसको बोलते हैं यार ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ बात करने का. यहाँ अगर कोई हमें बहुत रूड तरीके से बात करता है तो हम उसको बोलते हैं यार हम तुम्हारे बाप के नौकर है, तुम हमारे साथ ऐसी बात कर रहे हो. दिस मीन्स कि हमें कंसाइजनेस के साथ, कॉन्क्रीटनेस के साथ, करेक्टनेस के साथ अगर कोई चीज, अगर कोई बंदा हमें सच बता रहा है, लॉजिकल आइडिया से बता रहा है, टू द पॉइंट बता रहा है, उसके बाद भी हमारी जो डिमांड होती है ये होती है कि यार पोलाइट वे में बात करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं. या ये तुम बात किस तरह से कर रहे हो, यार कोई इस तरह से बात करता है क्या. हमने सारी चीजों पे इतना ट्रिगर नहीं मिलता जितना हमें कॉर्टियसनेस पे ट्रिगर मिलता है, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे हिट हुआ है. So whenever you are communicating, you should be polite, you should be humble, you should be honest, right? And you should know to whom you are speaking to. If you are speaking to your parents, your politeness should be different than talking to your friend, right? If if you have a subordinate, आपके घर में या कोई नौकर भी है, उससे बात करने का तरीका भी आपको polite होना चाहिए. It doesn't mean कि designation देख के polite होना है. No, you need to be polite because you need to exhibit good manners and good characters, and your communication needs to be effective. So these are the seven things which we need to take care of. आप अगर इनको इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट चीज भी मिलेंगे इसमें. किसी ने क्रिएटिविटी लिखा होगा, किसी ने कुछ और लिखा होगा, तो आपको वो भी मिलेंगे. दीज आर ऑल फाइन, बट आई बिलीव वो सारे इसी में आ जाते हैं, राइट. सो दीज सेवन सीज आर really effective in order to communicate well. And today we have realized that yes, whenever we are speaking even a single sentence, we take care of all these seven C's, that our single sentence should be clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. So I do take care that whenever I'm speaking, right,
I should take care of all these C's. Even we do it unconsciously. All the time हम जुमला बोल के गिनते नहीं है कि पहला C हुआ या दूसरा C हुआ या तीसरा C हुआ. ऐसा नहीं है. Unconsciously ये सारी चीजें होती हैं. But हाँ, unconsciously we take care of all these things. ओके मैम, पोलाइटनेस की भी एक लिमिट होती है ना, वो सामने वाले भी डिपेंड करता है ना कि वो कितना रिस्पॉन्स दे रहा है. If we are saying a कड़वी बात in a polite way, it can sometimes turn into taunt. When you say a कड़वी बात in polite way, it is never a taunt. Taunt जो हम बोलते हैं ना, वो उसी चीज को बोलते हैं कि कड़वी बात आपने मुंह चढ़ा के बोली है. और जो पोलाइट वे में बोली जाती है वो नसीहत होती है, टॉन्ट नहीं होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉन्ट एंड एडवाइस. टॉन्ट एंड एडवाइस में यही फर्क है, आपको मुंह से ही पता चल जाएगा. जब वो कोई उल्टा पुल्टा मुंह बना के आपको भले प्यार से बोले हाँ तुम तो लेट आते ही नहीं हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपको टॉन्ट मारा है. अगर कोई आपको बोले बेटा लेट नहीं आते, उससे बड़े नुकसान हो जाते हैं, तुम्हारी क्लास निकल जाती है, तो आपको फिर पता चलता है कि हाँ ये मेरी एडवाइस है, ये मेरा टॉन्ट है. We all human beings are really intelligent enough to distinguish के taunt क्या है, advice क्या है. Ma'am, can you repeat coherent again? Yeah, sure, why not? Coherent means that you should speak in से पूछेंगे कि आप रिसर्च वर्क कैसे किया, तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी ना कि यार पहले मैंने कंक्लूजन लिखा और फिर मैंने काम शुरू किया. डेफिनेटली व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट इट, तो एक फ्लो में मैं जाऊंगी. फॉर एग्जांपल चलें जी, हम लेते हैं कि जब भी कोई स्टोरी आती है तो उसका एक फ्लो होता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. तो जब भी हम कोई बात करें उसका कोई एक फ्लो हो. अगर आपसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई पूछता है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो आप पहले तो बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे ना यार मेरी हड्डी टूटी फिर मैं गिरा. तो इट शुड हैव अ लॉजिक, इट शुड हैव अ फ्लो, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होना है. जिस तरह अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो हर चीज को वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग. ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा कि मैं कॉर्टियस मैंने एक्सप्लेन करके एकदम से फिर करेक्ट पे आई हूँ, करेक्ट का सोच के फिर कंप्लीट पे आई हूँ, या कंप्लीट के ड्यूरिंग ही मैंने आपको कंसाइज क्लियर के एग्जांपल दे दिए. एक फ्लो होना चाहिए, एक आइडियाज का लॉजिक होना चाहिए. अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि इंटरनेट के बड़े फवायद हैं, तो पहले मैं लिखूंगी देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. ठीक है, पहला कंक्लूजन का सेंटेंस नहीं लिखूंगी, फिर पहला फायदा लिखूंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, राइट. In this way, there should be the flow. We can't write conclusion first and then the introduction. I hope coherent is clear to you. I hope coherent is clear to you. I, I want you got 30 minutes to look at the slide. Please read each and everything and let me know if things are clear or understood. If they are not even clear and understood, please let me know if you have any question. आपके ऑनलाइन जो है अराउंड 30 होते हैं, पर अटेंडेंस जो मेरी पास लगती है वो 20-25 की लगती है, बिकॉज तुम लोग बाकी रिस्पॉन्स नहीं देते हो. So make sure when you are into the class, you are giving responses. Else, I don't count you as present in my class. फिर वसीम की तरह जो है पीछे घर में पता नहीं क्या हो रहा होता है, हुण करे सी, और यहाँ पर जो क्लास चल रही होती है. I want everyone to tell me. आज मैंने एक काम करना है, जिसने रिप्लाई नहीं करना उसको मैंने क्लास से रिमूव करना है. फिर उनको पता चलेगा कि कुछ हुआ है. I want everyone to respond quickly if things are clear or not.
having so much network issues today. I don't know. There is some problem because I'm also having a lot of internet issues today. There must be some problem today. All right. So we are clear about the seven C's of effective communication. If we want to communicate effectively, then we have to take care of all these C's. And believe me that we have been taking care of all these C's throughout our life, and we never realize that we are taking care of all these. Let's move ahead. Okay, so then we have seven principles to develop writing skills, and these principles are really important. Miss Clear thought में या speaking में include है. Roll number 52, I really couldn't understand. Can you please rewrite it? Can you please rewrite it? All right, so there are then seven principles to develop writing skills. Um, Although they are a bit same, but there are certain things which are different, and we need to understand what is the difference between those seven C's of communication and seven principles of developing writing skills. So the first one is that writing should have clarity. The written communication should have clarity. When we say that it should be clear, we talk about language and ideas. That whenever you are writing, your ideas should be clear. If you are writing about the advantages of something, person should be clear in mind or in speaking. We are not talking about the person clarity. We talk about the concept, idea, or thought clarity into the mind when we are speaking about anything. The first principle to develop writing skill is clarity, that the language which you are writing in should be clear and your ideas should, if you are writing into the present tense, then your writing should be in the present tense. If you are writing about what happened yesterday, it should be about past. It shouldn't be about the future. If you are writing that what do you want to be into the future, it shouldn't be written into the past tense, right? It should be written either into present or the future. In the same way, if you are talking that what is your aim of life, then the ideas should revolve around the aim of life. Then the ideas shouldn't revolve around anything else, right? So when we are talking about the clarity, there are the two terms which we need to understand, that is the language and the idea. Then there is organization. Organization means that the ideas should have a logic, they should have a flow. If you remember, we have just stated that they should be coherent. So whenever you are writing any piece of writing, it should have organization. It should be organized. It should have logical ideas. It should be in the flow. If you are writing a story that once upon a time there was a king, right? You can't immediately kill the king until unless you develop a story. Yes, when we say the language, definitely we mean that grammar should be correct, spelling should be correct, sentence structure should be correct, right? Tenses should be correct. Each and everything that comprises into the language that should be correct. When we talk about organization, we talk about logical ideas, that the organization of the writing should be into a flow. If somebody asks you to write a recipe, उसका यह हरगिज मतलब नहीं होगा कि हम पहले लिखेंगे कि हाँ तो भाई बिरयानी दम पे लगाओ फिर प्याज काटो। ठीक, इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लिखेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स है जो हमें चाहिए, फिर हम पहले प्याज काटेंगे, फिर हम जो है ऑयल में इसको फ्राई करेंगे।
इस तरह से हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चलते हैं, एक ऑर्डर में लेकर चलते हैं. Whenever you are writing something, it should have order of ideas. It shouldn't be कि उसके ideas mingle अपने ताकि आपको समझ में ना आए. Then we have conciseness. Conciseness is as easy as we have already stated it. Conciseness means to the point. When you are writing anything, definitely the person who's reading it won't be interested in a lot of things. He or she would be interested whatever you're writing, and he should be interested to the point stuff. मुझे तो उन लोगों से चिढ़ आती है जो इतने लंबे लंबे उड़ जाते हैं, जो है ना टेक्स्ट मैसेज एक्चुअली करते हैं. एंड इवन दो आई एम काइंड ऑफ पर्सन, इफ समबडी आस्क्स मी कि हाउ आर यू, आई विल बी जस्ट राइटिंग ठीक. इतना भी नहीं बताती कि शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन चल रहे. आई इवन डोंट राइट इट. आई एम काइंड ऑफ पर्सन टू द पॉइंट, हाँ ठीक हूँ. कभी कभार का खुश नहीं होती ना, तो मैं इवन आई राइट ठीक. अगर खुश होती तो मैं लिख देती हूँ खुश. दैट्स इट. उससे ज्यादा आई डोंट राइट. Yes no की मतलब, if the question is like yes and no, then you should answer in yes and no. Yes, please write your question. Say if somebody has texted me that are you coming to the party, if I am coming, I should be writing yes. If I know, अगर मैं उसको रामलीला लिखना शुरू कर दूं, हाँ यार मैं आना तो चाह रही हूँ पर अब्बू मना कर रहे हैं, और फिर टाइम भी तो नहीं है, लाइट भी नहीं है, इस्त्री कपड़े कौन करेगा. So the person is not interested कि अब्बू मना कर रहे हैं, कपड़े इस्त्री हैं कि नहीं इस्त्री हैं. The person is interested if you are coming or not. So you should be very much concise and to the point that if you are going or not. And this varies from person to person, that you may be a kind of person who likes to exaggerate the things and like to have more details into things. And you might be the person who even are interested into more details, even like my mama. वो जब भी खाला को फोन करती हैं तो शी आस्क कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, राइट. तो कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो कंसाइजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. जिनको चरखारे लगे होते हैं ना बातों के, वो टू द पॉइंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते. उनको कहानियां चाहिए होती हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं एंड कि हुआ तो क्या, हुआ कि नहीं हुआ, राइट. 01 प्लीज राइट टू क्वेश्चन. यस. जैसे मैम सपोज हम लव लेटर लिख रहे हैं, तो मेन पॉइंट है कि आई लव हर, तो मैम क्या बाकी अपनी फीलिंग्स लेटर में नहीं लिखनी चाहिए? हाँ हाय 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 हाय, ये कहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और मैं क्यों पढ़ा रही हूँ. See, when you are writing a love letter, right? So that is to the point love letter. If you are writing love letter, उसमें तुम ये तो नहीं लिखोगे ना कि स्टॉक मार्केट का जो रेट है वो नीचे चढ़ गया या ऊपर हो गया. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट. अब उस लव लेटर में ये तो नहीं लिखोगे ना कि हाँ पैसे नहीं है, सोच रहा था लिखूं तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजूं, पर वो कैसे भेजूं. अब तुम उसमें ये तो नहीं लिखोगे ना हाँ जमीनों में आम जो है ना अब लग गए, हवा चल रही है तो अब आम गिरने शुरू हो जाएंगे. When I say concise, that means to the point, and you need not to include things which are irrelevant, right? Conciseness doesn't mean कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप ना कहें. उसका ये हरगिज मतलब नहीं है. उसका मतलब ये है कि जो आप कहना चाह रहे हैं सिर्फ वही कहें, वही सुने, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. 01, I hope this is clear now. Then we have accuracy. Accuracy means all the facts, figures, and citations should be accurate. When I talk about the term citation, this means reference. कि ये आपने जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है. This is particular in terms of the research writing which you would be doing on in technical report writing. When you will be writing report, तो उसमें आप अगर कहते हैं कि फलां ने ये काम किया था तो उसकी रिजल्ट ये आई, तो उसकी आप साइटेशन देंगे कि वो कौन था जिसका काम की आप बात कह रहे हैं और उसने किस साल में काम किया था. तो आपने वो साइटेशन एक्यूरेट देनी है. अगर आप ये कह रहे हैं कि 1988 में ये हुआ था, तो आपने वो फिगर जो है 1988 में सही देनी है और वो फैक्ट भी आपने सही देना है. ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स. Exactly, 01. I need to even talk about this, that whatever you want to speak or write, that should be all about it. And we shouldn't beat about the bushes. It shouldn't be about anything else except what you want to write. I hope it is clear. Accuracy is very easy to understand, that the facts, figures, and citations should be clear. Then we have vividness.
Vividness means that whatever you are writing, right, it should have detailed explanations and examples. अगर आप ये कह रहे हैं कि सॉरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि को-एजुकेशन के फायदे बहुत हैं, राइट, एज कंपेयर टू सोलो एजुकेशन, तो आपको क्या करना होगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी होगी और आपने एग्जांपल्स देने होंगे. व्हेन यू विल बी गिविंग एग्जांपल्स, डेफिनेटली यू विल बी गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम अदर्स वर्क जिन्होंने पहले ही को एजुकेशन पे काम किया होगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. इफ यू आर वर्किंग ऑन के फेस वॉश जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो स्किन को मॉइस्चराइज ज्यादा करता है एज कंपेयर टू सोप, तो आप ये सिर्फ कह नहीं देंगे, राइट, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आप अथेंटिक देंगे, इस तरह से नहीं देंगे. इवन दो अगर आप किसी को कोई आइडिया देते हैं कि यार ये काम इस तरह से करो, तो आपको एग्जैक्टली कहता है यार एक एग्जाम्पल दो कैसे होगा. इवन राइट नाउ व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग मी कि मैम एग्जांपल्स दे दें कि ये किस तरह से होता है. तो एग्जांपल से क्या चीज होती है, क्लियर होती है. तो इन राइटिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, और जब ये मैं राइटिंग कह रही हूँ आई मीन रिसर्च, व्हेन वी आर इनटू रिसर्च, और जब हम कोई भी चीज कह देते हैं तो हमें सिर्फ फायर नहीं कर देना, हमें उसको प्रूव करना होता है. अगर मैं ये कह रही हूँ कि face washes are more moisturizing than soaps, then I have to give explanation and examples to prove it actually. I hope vividness is clear. Then we have cogency. Cogency means sufficient evidence dena hai, right? For example, if I'm saying that बाहर के दूध में केमिकल मिला हुआ होता है तो मुझे वो बात सिर्फ कह नहीं देनी होगी. वॉट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गिव एविडेंस कि ये दूध है, उसको मैंने लेबोरेटरी में भेजा था, तो उसकी ये केमिकल कंपोजिशन है, और ये जो है डायरेक्ट गाय का दूध है, ठीक है, ये घर से जो है हमने लिया था, और फिर जो है हमने इसको केमिकल लेबोरेटरीज में लेकर गए थे, ये जो है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये बाहर वाले दूध की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. फिर आपने क्या करना है, एविडेंस देना है इन ऑर्डर टू प्रूव योर रिसर्च. आप जो भी रिसर्च करेंगे आप उसको प्रूव करेंगे. अगर आप कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वही हम फेस वॉश की लेते हैं कि फेस वॉश इज मोर मॉइस्चराइजिंग देन सोप, तो आपको फिर प्रूफ देना पड़ेगा कि इतने लोगों ने फेस वॉश यूज किया, इतने लोगों ने सोप यूज किया, जिन लोगों ने फेस वॉश यूज किया उनकी स्किन ज्यादा सॉफ्ट थी एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने सोप यूज किया, और जिन्होंने सोप यूज किया उनकी स्किन ड्राई हो गई थी. देन यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस. विविडनेस का मतलब है एग्जाम्पल जो कि आप दूसरों के देंगे, राइट. कोजेंसी का मतलब है एविडेंस जो कि आप जो काम खुद कर रहे हैं उसका आप एविडेंस देंगे. Then in the last we have depth, that you need to give all the ideas in detail. फिर आपके वो वेरिएबल्स हों, लिमिटेशंस हो, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, आपकी इम्प्लीकेशंस हैं, आपकी सिग्निफिकेंस है या कंक्लूजन है, ये सारे टर्म्स आपको तब क्लियर होंगे जब हम आगे जाकर रिसर्च को पढ़ेंगे. अभी हमें ये समझना है कि व्हेन वी आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, वी आर राइटिंग एनी article to give the in details, right? So I want you to just look at the slide for once, read each and everything because all these things would be really important and helpful in writing a good writing piece. So I want you to just reread them once and let me know if you have any questions. If things are clear, please let me know too. What is accuracy? Accuracy means your facts should be accurate, your figures should be accurate, your citation should be accurate. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कल की तारीख में क्या हुआ था, राइट, तो आप मुझे पूरा सच बताएंगे जो कल की तारीख में हुआ था. अगर मैं आपसे पूछूं कि कल कितने बच्चे प्रेजेंट थे,
तो वो आप मुझे एग्जैक्ट फिगर देंगे, राइट, एक्यूरेट फिगर देंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, फिगर्स एंड साइटेशन। साइटेशन का मतलब है कि जब आप किसी का भी काम बताएंगे कि यार फला ने जो है इस साल में ये काम किया था, तो आप उसको सही से कोट करेंगे, आप गलत बयानी उसमें नहीं करेंगे। Please ask me your question so that it's not 70%, it is 100%. ओके जी, मैं सिक्स को रिपीट कर रही हूँ। कॉजेंसी का मतलब है that you have to provide sufficient evidence. As I gave you the example, उसको मैं फिर से एक बात रिपीट कर देती हूँ। आपका कहना ये है कि जो, चलें जी कोई एक और अलग से एग्जांपल लेते हैं। आपका कहना ये है कि एक्वाफिना का जो पानी है वो ज्यादा प्योर है एज कम्पेयर टू नेस्ले, ठीक है। आप जो है ये रिसर्च के टर्म में सारी हम बातें कर रहे हैं, आप ये अपनी रिसर्च में प्रूव कर रहे हैं कि एक्वाफिना का जो पानी है वो ज्यादा बेहतर है, उसकी टीडीएस ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नेस्ले। वो आप हवा में फायर नहीं छोड़ेंगे, आपने वो प्रूव करना है। प्रूव आप कैसे करेंगे? एविडेंस के साथ प्रूव करेंगे कि ये एक्वाफिना का पानी है, इसका टीडीएस मैंने इस तरह से चेक किया है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। और ये नेस्ले का पानी है, इसका टीडीएस मैंने चेक किया है, इतना आया है, और ये इसकी जो है केमिकल कंपोजिशन है। अब इन दोनों को कंपेयर करने से पता चल रहा है कि एक्वाफिना ज्यादा बेहतर है। तो उसको हमने एविडेंस देने हैं, राइट, सफिशिएंट एविडेंस देने हैं। सिर्फ बातें हमने लिख नहीं देनी है, उसके लिए हमें प्रूव भी करना है चीजों को। सेवन का मतलब है कि हमने हर चीज जो है वो डिटेल में और डेप्थ में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम अभी ये कह रहे हैं कि एक्वाफिना का जो पानी है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो हमें जितनी भी फाइंडिंग्स मिली हैं उसके हिसाब से हमने वो सारी फाइंडिंग्स लिख देनी है, राइट। और उससे क्या फायदा है, हमने क्यों की है, ठीक है, फाइनली हमारी रिजल्ट क्या है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि यार मैंने सिर्फ दो पानियों को कंपेयर किया है, हो सकता है एक्वाफिना बाकियों से ज्यादा अच्छा ना हो, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। तो सारी चीजें हमने डिटेल में लिखनी है रिगार्डिंग दैट रिसर्च, जो आपके आइडियाज हों वो डिटेल में हो। गाइस प्लीज इसको एक बार और पढ़ें, एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू राइट योर क्वेश्चन। If I'm over here to teach you, that doesn't mean that I'm here just to pass my time. I'm just here to make you guys understand and realize these things. आपने हमेशा चीजें लिखी हैं और आप लिखेंगे, और आपको उन चीजों की रियलाइजेशन होनी चाहिए। आई डोंट वांट यू टू क्रैम दीज थिंग्स, बिकॉज क्रैमिंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, जब हम ये चीजें लिखते हैं तो हम इन चीजों का ख्याल करते हैं। Taranji, this was all about today. And quickly let me know how was today's class. Did you learn something new and was it exciting for you guys? If you have any suggestion, please let me know. Even though today I was switching myself to Urdu so that the things are clear, because these are something new and you might not understand. And in order to connect you with your real life, I needed to speak in Urdu. So I just tried my best. Quickly let me know how was you today's class. Okay, better than good. Good citizens and learn new things. Nice. Okay, see, that's good to know that you learned something today, and
You have learned. I don't want you to cram things. Trust me. I just want you to realize the things and understand the concepts very well. And all these are going to be the part of your examination, definitely. So just please, please be regular and punctual. And all these things are really important to write a report. रिपोर्ट हम एकदम से लिखना स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, राइट? जिस तरह से हमें कुकिंग करने से पहले सारी चीजें रेडी करनी पड़ती है, इन द सेम में बिरयानी बनाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिसर्च हमारी बिरयानी है तो ये सारे हम इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं। So guys, then see you next week. Till then, take very good care of yourself. And then on internet, everything is available. You guys can explore. And if you have any question and query, you guys can contact me on Messenger. Till then, take very good care of yourself. See you next week. Bye bye.